So we start with the final and last topic of Unit 1, Class 11 Physics, and this is called the dimensions. So this plays an important role all over the world, and there is a very good note on the dimensions. So why the dimensions of the object are significant. So dimensional measurement is how we know and quantify the size and shape of things. It involves length and angles as well as geometrical properties such as flatness and straightness. Dimensional measurement is of fundamental importance for interchangeability and global trade. It is how we ensure that things will fit together. Without global length, global mass standard, and global time standard, it is very difficult, or I will say it's impossible to do any trading in any part of the world. Dimensional measurement is also key to ensuring product perform as intended. For example, the strength of structure is calculated using measurement such as the thickness of a flank or the span of a beam. If there is any uncertainty in the measurement in length, so it will show the uncertainty in the strength. And if there is uncertainty in the measurement of mass, again, it will show the uncertainty in the strength. So for the global trading, it is necessary to have the knowledge of dimensions. So let us go for this lecture, the dimensions. So first slide I have symbol for dimensions of fundamental quantities. And the first fundamental quantity I have length, and it is represented by capital L, mass by capital M, time by capital T, temperature, it is by capital K or sometime with theta. Current, sometime with capital I or capital A, and luminous intensity, it is represented in cadilla, and amount of substance is in mole. So the physical quantities and their dimensions, the dimensions of length is L, the dimension of mass is M, the dimension of T, the time is T, but they are capital letters. When we deals with the dimensions, then the physical quantity or the derived quantity that will be in capital letters. So these are the fundamental quantities. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 fundamental quantities, and their dimensions are represented by the capital letters. Now, second is the what is a dimensional formula? Now, by physical quantities or by the fundamental quantity or any derived quantity, we will derive a formula, we will make a formula, and that is called the dimensional formula. If it is from the fundamental quantities, then it is a dimension formula related to the fundamental quantities, and if it is from the derived quantities, then it is the dimension formula from the derived quantities. So dimension formula, physical quantity, you take any physical quantity, maybe fundamental or maybe derived. So it has 3 components: the mass and the power of mass, length and the power of length, time and the power of time. So take any physical quantity. So it has 3 components: mass, length, and time with their powers. How do you determine the dimensions of speed? So the first step, what is the formula for the speed? It is distance upon time. In the second step, we will write the dimensions of distance
In distance, distance basically it is a length. So mass is not there, time is not there, length is there. So it is L raised to the power 1. Now we will write the dimension formula of time. Mass is not there, length is also not there, but time is there. So finally, we can write dimensional formula of the speed m0 L1 t raised to the power minus 1. So this is the technique to write the dimensional formula of speed. So first we will write down the formula. Speed is equal to distance upon time, and we will write the distance dimensional formula. It is m0 L1 t0. So distance basically it's a length. Directly I can write L upon t also. So the final dimensional formula of the speed m0, because mass is not there, length is there, L raised to the power 1. T is in the denominator, so it becomes t raised to the power minus 1. Determine the dimensions of temperature gradient. So temperature gradient means temperature per unit distance, temperature per unit length. So suppose we burn a candle in our room. So the candle is giving heat as well as light. So how heat is spread in the room? So means the temperature per unit distance. That is temperature per unit distance in every length, how the temperature is there, how the temperature is distributed in each centimeter or each millimeter or in each meter. So that is called the temperature gradient. You take the gradient of any physical quantity divided by that divided by distance, that will become the gradient. So if we take the pressure gradient, so it is the pressure upon area. Pressure gradient is the pressure upon area. If we take the force gradient, it is force upon area. So here it is a temperature gradient, so we can take it as temperature upon, here area is not taken because we will discuss why it is not area in our coming lecture. So for this time, keep in mind the temperature gradient, that is temperature upon distance, not upon the area. So temperature gradient, temperature is in Kelvin, it is a fundamental quantity. So no mass, no length, no time. And the distance is length, so only length is there, mass, time, and everything is 0. So the final dimensional formula for temperature gradient, m0 L minus 1, because L is in the denominator. So L minus 1 T0 and the K1. So this is the final dimensional formula of the temperature gradient. Now second is the dimensional equation. Equation means something is there in the left side and something is there in the right side. So means one physical quantity is in the left side and one or two or three physical quantities, they may be in the right side with their own powers. So how one physical quantity is related to the other physical quantity, so that relation is given in the dimensional equations. So consider the equation of motion v is equal to u plus at, where v is the final velocity of the object, u is the initial velocity of the object, a is the acceleration of the object, and t is the time taken from initial speed u to the final speed v. Time taken from initial speed u to final speed v. So how to write the dimensional equations of this equation of motion? So velocity, you have the velocity in the left hand side. So first write down the dimensional formula of the velocity. Mass is not there, L1 t minus 1. So this is the dimensional formula of the velocity, equal to, write the dimensional formula of this velocity again, because it is also velocity, having the same dimensional formula.
Now write the dimensional formula of the acceleration. It is m0 L1 t minus 2. So now this becomes a dimensional equation. So already we have this equation, and when the equation is not written in this format, it is written in their dimensional form. So that becomes a dimensional equation. And dimensions of time is m0 Lt1. So this is a dimensional equation. Physical quantities on the basis of dimensions. So actually we have 4 treatments or 4 methods by which we can categorize the physical quantities on the basis of their dimensions. So dimensional variable. So any physical quantity, it has dimensional variables, and dimensional variables further they can be categorized as it may have dimensions, means any physical quantity it may have dimensions, or does not have a fixed value, does not have a fixed value. For example, force. Force is equal to mass into acceleration. Mass into acceleration. So I will write mass as capital M, and velocity is a meter per second. Sorry, acceleration can be written as acceleration is equal to meter per second square. So meter is basically a distance L, and this is t square. This is t square. So now I can write ml, capital M. This is capital M, capital L, capital T raised to the power minus 2, and that is kept in the bracket. Kept in the bracket. So has fixed dimension. Dimensions are fixed. Force के dimension fix हैं, but force खुद ब खुद fix नहीं है ना. अगर मैं कहूं कि ये 10 न्यूटन की फोर्स है, अगर मैं कहूं कि ये 20 न्यूटन की फोर्स है, 30 न्यूटन की फोर्स है, तो फोर्स कितने भी न्यूटन की हो रहेगी तो फोर्स ही. तो उसके डायमेंशन फिक्स हैं, उसमें m की mlt माइनस 2 यही होगा, चाहे वो 10 न्यूटन की फोर्स हो, डायमेंशनली तो वो यही रहेगी, है ना. सो डज नॉट हैव ए फिक्स वैल्यू. फोर्स की मैग्नीट्यूड कोई फिक्स नहीं होती, बट फोर्स के डायमेंशन फिक्स होते हैं. भाई मैग्नीट्यूड तो फोर्स की कुछ भी हो सकती है. 10 न्यूटन की फोर्स हो सकती है, 20 न्यूटन की फोर्स हो सकती है, 30 न्यूटन की फोर्स हो सकती है. फोर्स कितनी भी हो सकती है, फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई फिक्स नहीं है. ये फिक्स नहीं है, बट इसके डायमेंशन फिक्स है. सो ये हो गया फोर्स क्या है, एक डायमेंशनल वेरिएबल है. उसके डायमेंशंस तो हैं, बट वो खुद ब खुद वेरिएबल है. फोर्स के डायमेंशंस तो हैं, डायमेंशन फिक्स है mlt माइनस 2, बट फोर्स वेरिएबल है. फोर्स कुछ भी हो सकती है, फोर्स इज वेरिएबल. क्योंकि फोर्स 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर, फोर्स डिपेंड करता है एक्सेलरेशन के ऊपर. सो अगर मान लें कि मास फिक्स है, मास फिक्स है, एक्सेलरेशन हो सकता है वो चेंज हो जाए, विच इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, विच इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो अगर वेलोसिटी में कुछ चेंजेस हैं तो एक्सेलरेशन में चेंजेस हो सकते हैं. सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी हो सकती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकती है, और एक्सेलरेशन 0 भी हो सकती है. सो बिकॉज एक्सेलरेशन की 3 कैटेगरी हो सकती है, तो ऐसे ही फोर्स भी वेरिएबल होगी. सो फोर्स वेरिएबल है, बट उसके डायमेंशन फिक्स है. सो ये टॉपिक था हमारा फिक्स. So let me take the attendance first, and then I will move to the next slide. Adarsh Rana. Adarsh. Yes, sir. मॉर्निंग में कहाँ गायब थे भी सारे आज? मनोज थापा. Present, sir. पायल चौहान. प्रेजेंट सर. मॉर्निंग में क्यों नहीं थे भी? मैं पूरा लेक्चर वेट करता रहा. शेफाली.
सर हम तो बायो वाले स्टूडेंट हैं सर। ओके ओके ओके, अच्छा तो मैथ का तो स्टूडेंट था ना इसके अंदर, मैथ के कौन कौन स्टूडेंट थे? सारे स्टूडेंट बायो सर के मैं हैं? और आयुष। आयुष, आयुष तो आज यहाँ पे भी नहीं है। वंश, यस सर। वंश आज बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ चले गए थे? सर यही था। तो क्लास में तो नहीं थे मेरी? सर कल नहीं था। अच्छा, हर रोज आते हो, वेरी गुड। चलो ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो डायमेंशनल वेरिएबल हैज डायमेंशंस, डज नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यूज, क्लियर? The second is dimensionless variable, dimensionless variable। अब ना तो डायमेंशन होंगे और वो खुद ब खुद वेरिएबल होगी, मींस हैज नो डायमेंशंस, डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। सो अब देखते हैं ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जिसमें डायमेंशंस भी नहीं होंगे और वो वेरिएबल होगी। सो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना? सो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो ओके, सो लेट मी डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना? सो म्यू, म्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ये एक वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है, जस्ट ए मिनट, हमने एक वाटर टैंक को लिया, सपोज ये एक वाटर टैंक है एंड ये वाटर है और लाइट यहाँ एयर से, ये ऊपर एयर है, एयर, लाइट ने एयर से इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया, विच इज ए सरफेस जिसको इंटरफेस बोलते हैं, विच सेपरेट द एयर फ्रॉम वाटर। और उसके बाद हो सकता है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, c मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे अभी यहाँ पे स्पीड क्या है, बाहर एयर में c है और अंदर कितनी होगी, v होगी, v। तो ये जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये तो c तो हमें पता ही है, c हमें पता ही है, c कितना है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे मान लो ये कितना हो गया, 1 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। So this 10⁻⁸ is cancelled. So refractive index कितना आ गया, वो कितना आ गया, 3 आ गया। बट हमारा कंसर्न यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना नहीं था, हमारा कंसर्न यहाँ पे ये था कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई डायमेंशन नहीं होंगे। भाई देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के जो डायमेंशन आएंगे कितने आएंगे, एम है ना, एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, एम कितना है, 0 है ना। नीचे इसके भी कितने आएंगे, एम 0, एल, भाई आवाज डिस्टर्बेंस आ रही है ना। एक बार सारे स्टूडेंट म्यूट करेंगे, पायल म्यूट योरसेल्फ, पायल म्यूट योरसेल्फ, ओके ओके फाइन। सो डायमेंशनल फार्मूला ऊपर जो वेलोसिटी स्पीड का है, स्पीड ऑफ लाइट का है m0 l t - 1, नीचे वेलोसिटी का भी सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 l t - 1। सो ये डायमेंशन फार्मूला ऊपर वाली स्पीड का और नीचे वाली स्पीड का कैंसिल हो जाएंगे, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस बन जाएगा। सो डायमेंशन लेस तो हो गया, और ये तो क्लियर हो गया कि इसके हैज नो डायमेंशन, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट भी वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, तो दोनों के डायमेंशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो जो ओवरऑल रिजल्ट हमें मिला वो डायमेंशन लेस हमें मिला। अब सेकंड है डज नॉट हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फिक्स वैल्यू नहीं होती है ना, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे।
अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है कि स्पीड कितनी कम होगी। अब देखो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट की स्पीड उस मीडियम में कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो स्पीड वहां पे कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट वहां पे कम हो जाएगी। Okay, so first let me erase all these things. So हमने डिस्कस किया सेकंड पार्ट जो हमने डिस्कस किया, डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस है, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन भी नहीं है और वो फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल भी है। फर्स्ट हमने किया था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसके डायमेंशन है बट वो वेरिएबल है। फोर्स है, फोर्स के डायमेंशन है बट वो वेरिएबल है। फोर्स 10 न्यूटन की हो सकती है, 20 न्यूटन की हो सकती है। वेलोसिटी भी, वेलोसिटी कितनी भी हो सकती है, एक्सेलरेशन कितनी भी हो सकती है। इनके सबके डायमेंशन फिक्स हैं भाई, वेलोसिटी के डायमेंशन फिक्स हैं, एक्सेलरेशन के फिक्स हैं, बट ये खुद ब खुद फिक्स नहीं है, सो इनको बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। सेकंड था डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशन भी नहीं है और वेरिएबल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्लेन एंगल है, इनके डायमेंशन भी नहीं है और ये वेरिएबल है। थर्ड कैटेगरी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आ गई डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन कांस्टेंट मींस डायमेंशन है, हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, और उसकी वैल्यू भी, वो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन भी हैं और वो फिजिकल क्वांटिटी फिक्स रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होती। सो देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। गैस कांस्टेंट है ना, सो इनकी वैल्यूज फिक्स हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, सो ये फिक्स है। प्लैंक्स कांस्टेंट H इज इक्वल टू 6.63 into 10 raised to the power -34 जूल सेकंड। सो अब इस H के डायमेंशन भी होंगे। अब इसके डायमेंशन हम निकालते हैं। सो पहले बात करते हैं कि ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स है। फिजिक्स में सबसे छोटा कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट, फिजिक्स में सबसे छोटी वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 into 10 to power -34। और मैं ये बोलूंगा कि साइंस में इससे छोटा कांस्टेंट होता नहीं है। दिस इज द स्मॉलेस्ट कांस्टेंट वी हैव इन साइंस। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सबसे जो छोटा कांस्टेंट है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट के अपने बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं। जैसे ही हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट का लेक्चर आएगा, सो आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये प्लैंक्स कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट है जो हमें क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में डिफरेंस बताता है। How the classical physics is different from the quantum physics. With the help of this Planck constant, we can easily do that. So अब इसके dimension होंगे। So I start from the Albert Einstein equation. E is equal to E is directly E is equal to H nu. E is equal to H nu, where nu is the frequency. Where nu is the frequency. So equation is energy emitted by any body or energy absorbed by any body, any object, that is directly proportional to frequency of the object. If the object carries at high frequency, then the energy will be high. If the frequency is low, energy will be low. So this proportionality is eliminated and equality operator is used. So introduce a new constant. It is called the Planck's constant. So we are interested in the dimensions of Planck's constant. So H is equal to E upon nu. And we know that frequency is just opposite to time. Frequency is just opposite to time. So we can write H is equal to E upon 1 upon T. So this can be written as E into T, energy into time. So we know that energy, it is again kinetic energy or potential energy, kinetic energy or potential energy. So whatever energy you take, their dimension formulas, they are same. जो kinetic energy का dimension formula होगा, वही dimension formula
पोटेंशियल एनर्जी का होगा। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, एच के डायमेंशन है, इसके डायमेंशन है, हैज डायमेंशंस, क्योंकि ये एनर्जी से और टाइम से बना है, क्योंकि एनर्जी के भी डायमेंशन है, टाइम के भी डायमेंशन है, सो प्लैंक्स कांस्टेंट के भी डायमेंशन होंगे। और प्लैंक्स कांस्टेंट खुद एक फिक्स वैल्यू है, खुद एक फिक्स वैल्यू है, ये चेंज होने वाली वैल्यू नहीं है, सबसे छोटा कांस्टेंट है फिजिक्स में। सो फर्स्ट लेट मी इरेज दिस। The second part is डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब एक ऐसा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वो है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, जिनके डायमेंशन है, बट हमारे पास ऐसे कांस्टेंट भी हैं जिनके डायमेंशन नहीं है। सो हैज नो डायमेंशन, हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, वैल्यू फिक्स है उनकी, डायमेंशन नहीं है। सो कांस्टेंट नंबर लाइक, ये तो बहुत इजी है ना, कांस्टेंट नंबर जितने भी हो गए हमारे पास 1 2 3, तो उनके कोई डायमेंशन नहीं है, बट वन है ना, वन इज फिक्स, वन का मतलब वन इज फिक्स, टू का मतलब टू इज फिक्स, इनके डायमेंशन नहीं होते। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 1/2 है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसके डायमेंशन है, इसके डायमेंशन है, बट इसका डायमेंशन नहीं है। सो हैज नो डायमेंशन बट इट इज फिक्स, 1/2 फिक्स है ना, हाफ है। यहाँ ऐसा तो नहीं कर सकते कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4mv स्क्वायर, वो तो नहीं हो सकता, 4mv स्क्वायर ये तो नहीं होगा ना काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला यही है कि ये जो नंबर है ये यहाँ पे 1/2 है, ये फिक्स है, ये फिक्स होगा, है ना। सो ये फिक्स होगा, और इसके कोई आपस में, जितने भी नंबर हैं उनके कोई आपस में डायमेंशन, उनके डायमेंशन नहीं होंगे। So let us try some questions. A unitless quantity जिसका यूनिट नहीं होगा, a unitless quantity, always a number, may be a physical constant without dimensions, has no dimensions, all the above are correct. So all the above are correct. A unitless quantity जिसके यूनिट ही नहीं होंगे, वो कोई नंबर ही होगा जिसके यूनिट नहीं होंगे। जैसे हमारे पास हो गया 42, अब इसके पीछे मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है, सो ये नंबर तो है ही, यूनिटलेस है तो नंबर होना तो जरूरी है। मे बी ए फिजिकल कांस्टेंट विदाउट डायमेंशंस, कोई ये कांस्टेंट वैल्यू है 42, ये कि कोई फिजिकल कांस्टेंट भी हो सकता है ना। सो हैज नो डायमेंशन, अब इसके डायमेंशन भी नहीं है, तो ये तीनों चीजें ही ठीक है यहाँ पे ना। ये एक नंबर तो पक्का होगा, मे बी ए फिजिकल क्वांटिटी, ये नंबर कोई फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है, विदाउट डायमेंशन होगी, हैज नो डायमेंशन, सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। Which of the following is not a dimensionless quantity? बहुत इजी क्वेश्चन है, सो ये निकाल के हमें देखना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने पहले भी प्रीवियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कैसे इनके डायमेंशन निकालने हैं। सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है, सो वन बाय वन हमें देखना पड़ेगा। सो डेंसिटी इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस, ये एक डायमेंशन मींस इसके डायमेंशन हैं, बाकी किसी का भी डायमेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई टेक द स्ट्रेन, स्ट्रेन ये देखते हैं, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज हुआ और उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, उन दोनों का रेशियो है, दैट इज स्ट्रेन। सो चेंज इन लेंथ एक्चुअल में है तो लेंथ, ये भी लेंथ है, सो दोनों के डायमेंशन फार्मूला आपस में कैंसिल हो जाएंगे, L/L, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन जाएगी। एंगल है थीटा, इसके डायमेंशन नहीं होते, थीटा के कोई डायमेंशन नहीं होते, कोई भी एंगल हो सकता है, थीटा उसका डायमेंशन नहीं हो सकता कोई भी है, वो 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो, एंगल 2 डिग्री है, एंगल 2 डिग्री है, एंगल 3 डिग्री है,
एंगल 50 डिग्री है ना। इनके डायमेंशन नहीं होते, ना इसमें मास है, ना इसमें लेंथ है, ना इसमें टाइम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें भी ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है। सो ये डायमेंशन लेस होगी। इसके अंदर डायमेंशन है क्योंकि डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखेंगे एल क्यूब। सो हमारे पास क्या आ गया है, एम एल माइनस 3, ये इसके डायमेंशन हो गए। बाकी सारे डायमेंशन लेस हैं, सिर्फ डेंसिटी ही एक डायमेंशनल क्वांटिटी है। If the dimensional formula for the physical quantity is m1 l square t minus 2, then the physical quantity बहुत इजी है निकालना है। वन बाय वन सबका चेक करेंगे तो किसका आएगा, तो टॉर्क आ जाएगा m1 l square t minus 2। बहुत इजी है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इसको कैसे करेंगे हम, टॉर्क कैसे हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस इज लेंथ। तो टॉर्क इज इक्वल टू, force is equal to m l t minus 2. This is force, and because one l more l is there, so this become l square. So m l square t minus 2, this is force. Now that's all for today, and in our next lecture we will discuss the next and the last lecture of this unit. So we completed the first unit having 2 chapters, and the dimensions is the topic of second chapter, and tomorrow will be our last lecture of this unit number 1. So students, okay, and that's all for today. Thank you, sir. Okay.